Welcome to Kanagia Study Material Today Topic Asterisk Books August 22nd, 2025 Top Current Affairs News GK in Hindi and English Asterisk in Newspaper Analysis Asterisk Q1 Which Indian athlete won India's first ever gold medal at the 2025 U20 World Wrestling Championships? किस भारतीय एथलीट ने 2025 U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का पहला गोल्ड मेडल जीता? A. Tapasya / B. सृष्टि बटा सृष्टि, C. प्रिया मलिक बटा प्रिया मलिक, D. रीना बटा रीना। आंसर बटा उत्तर तपस्या बटा तपस्या। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या। Tapasya defeated Norway's Felicitas Damagiva in the 68 kilograms final to win India's first ever U20 gold medal. तपस्या ने 68 किलोग्राम फाइनल में नॉर्वे की फेलिसिटास डोमाजेवा को हराकर भारत का पहला U20 गोल्ड मेडल जीता। Asterisk Q2. Where was the 2025 U20 World Wrestling Championships held? 2025 U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई थी? A. Russia / B. जापान बटा जापान, C. बुल्गारिया बटा बुल्गारिया, D. USA बटा अमेरिका। आंसर बटा उत्तर बुल्गारिया बटा बुल्गारिया। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या। The event was hosted in Pantev, Bulgaria. यह आयोजन बुल्गारिया के पोंटेव शहर में हुआ। Asterisk Q3 In the final, what was the score by which Tapasya defeated Felicitas Damagiva of Norway? फाइनल में तपस्या ने नॉर्वे की फेलिसिटास डोमाजेवा को किस स्कोर से हराया? A. 5-2 B. 4-3 C. 3-1 D. 6-0। आंसर बटा उत्तर 5-2। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या। Tapasya won the gold by a margin of 5-2. तपस्या ने 5-2 से जीत दर्ज कर गोल्ड जीता। Asterisk Q4 How many medals has India won so far in the 2025 U20 Wrestling Championships, till August 22nd, 2025? 22 अगस्त 2025 तक भारत ने 2025 U20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? A. 1 gold, 1 silver. B. 1 gold, 2 silver. C. 2 gold, 1 silver. D. 2 gold, 2 silver. White heavy checkmark answer / 1 gold, 2 silver. एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या। India's medal tally: 1 gold, Tapasya, and 2 silver, Sumit Malik and Priya Malik. भारत ने अब तक 1 गोल्ड तपस्या और 2 सिल्वर सुमित मलिक व प्रिया मलिक जीते। Asterisk Q5 Which Indian wrestler won silver in men's 57 kilograms category? पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय पहलवान ने सिल्वर जीता? A. Tapasya / B. सुमित मलिक बटा सुमित मलिक, C. प्रिया मलिक बटा प्रिया मलिक, D. रीना बटा रीना। आंसर बटा उत्तर सुमित मलिक बटा सुमित मलिक। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या। Sumit Malik lost in the final to a Russian wrestler and secured silver. सुमित मलिक फाइनल में रूसी पहलवान से हारकर सिल्वर पर रुके। Asterisk Q6 Which Indian wrestler entered the final in women's 76 kilograms category? महिला 76 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय पहलवान ने फाइनल में जगह बनाई? A. Tapasya / B. सृष्टि बटा सृष्टि, C. प्रिया मलिक बटा प्रिया मलिक, D. रीना बटा रीना। आंसर बटा उत्तर प्रिया मलिक बटा प्रिया मलिक। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या। Priya Malik entered the finals of women's 76 kilograms category.
प्रिया मलिक महिला 76 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में पहुंची। Asterisk Q7. India signed terms of reference, TOR, to start FTA negotiations with which group? भारत ने किस समूह के साथ FTA वार्ता शुरू करने के लिए टोर पर हस्ताक्षर किए? ए. यूरोपियन यूनियन बटा यूरोपीय संघ, बी. ASEAN बटा आसियान, सी. EO बटा यूरेशियाई आर्थिक संघ, डी. सार्क बटा सार्क। आंसर बटा उत्तर EO बटा यूरेशियाई आर्थिक संघ। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या। India and the EAEU signed TOR to initiate talks for a free trade agreement. भारत और EO ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए टोर साइन किया। Asterisk Q8. Who signed the TOR on behalf of India? भारत की ओर से टोर पर किसने हस्ताक्षर किए? A. Commerce Minister. B. Prime Minister. C. Ajay Badu, ADDL Section, Department of Commerce. D. Foreign Secretary. आंसर बटा उत्तर अजय भादु बटा अजय भाडू। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या। Ajay Badu, Additional Secretary, Department of Commerce signed for India. भारत की ओर से अजय भाडू अतिरिक्त सचिव वाणिज्य विभाग ने हस्ताक्षर किए। Asterisk Q9. What was India EAEU trade turnover in 2024? 2024 में भारत EO का व्यापारिक टर्नओवर कितना था? A. 60 billion US dollars. B. 69 billion US dollars. C. 75 billion US dollars. D. 80 billion US dollars. White heavy check mark answer / 69 US dollars billion. एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या। India EAEU bilateral trade reached 69 billion US dollars in 2024. भारत EO व्यापार 2024 में 69 अरब डॉलर तक पहुंचा। Asterisk Q10. Which Indian state recently launched the Green Hydrogen Policy 2025? किस भारतीय राज्य ने हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2025 इंच लॉन्च की? ए. गुजरात बटा गुजरात, बी. ओडिशा बटा ओडिशा, सी. राजस्थान बटा राजस्थान, डी. महाराष्ट्र बटा महाराष्ट्र। आंसर बटा उत्तर ओडिशा बटा ओडिशा। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या। Odisha launched Green Hydrogen Policy 2025 to promote clean energy and attract investments. ओडिशा ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2025 इंच शुरू की। Asterisk Q11. What is the main purpose of the proposed FTA with EAEU? EO के साथ प्रस्तावित FTA का मुख्य उद्देश्य क्या है? A. Promote tourism. B. Boost exports and support MSMEs. C. Cultural exchange. D. Defense cooperation. White heavy check mark answer / boost exports and support MSMEs. एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या। The FTA aims to expand exports and create new opportunities for Indian MSMEs. यह FTA भारत के निर्यात बढ़ाने और MSMEs को नए अवसर देने के लिए है। And Q12. Who signed TOR from the EAEU side? EO की ओर से टोर पर किसने हस्ताक्षर किए? A. Sergei Lavrov. B. Mikhail Cherkiv. C. Igor Sechin. D. Dmitry Medvedev. आंसर बटा उत्तर मिकाइल चेरेकाएव बटा मिखाइल चेरेकेव। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या। Mikhail Cherkiv, Deputy Director of Trade Policy Department, signed from the EAEU side. EO की ओर से मिखाइल चेरेकेव ट्रेड पॉलिसी विभाग के उपनिदेशक ने हस्ताक्षर किए। Asterisk Q13.
Which country won silver in women's 68 kilograms final, losing to Tapasya? महिला 68 किलोग्राम फाइनल में तपस्या से हारकर किस देश ने सिल्वर जीता? A. India. B. Japan. C. France. D. Norway. आंसर बटा उत्तर नॉर्वे बटा नॉर्वे। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या। Norway's Felicitas Damagiva finished with silver after losing to Tapasya. नॉर्वे की फेलिसिटास दोमाजेवा तपस्या से हारकर सिल्वर पर रुकी। Asterisk Q14. In the semi-final, Tapasya defeated the wrestler of which country? सेमीफाइनल में तपस्या ने किस देश की पहलवान को हराया? A. Japan. B. France. C. Germany. D. USA. आंसर बटा उत्तर जापान बटा जापान। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या। Tapasya defeated Japan's wrestler in the semi-final. तपस्या ने सेमीफाइनल में जापान की पहलवान को हराया। Asterisk Q15. What weight category did Tapasya compete in? तपस्या किस भार वर्ग में उतरी थी? A. 57 kilograms. B. 62 Kilogramm. C. 68 kg. D. 76 kg. White heavy checkmark answer slash 68 kg. एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या। Tapasya won the women's 68 kilograms category gold. तपस्या ने महिला 68 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड जीता। जय श्री राम। शुक्रवार 22 अगस्त 2025 के मुख्य समाचार। फर्जी दस्तावेजों से बना रहे थे रोहिंग्या बांग्लादेशियों के आधार, 8 गिरफ्तार। ओएनएलआईएनई गेमिंग बिल विपक्ष के हंगामों के बीच राज्यसभा में भी पारित। हर साल 45 करोड़ लोग 20,000 करोड़ से ज्यादा गवा रहे थे। शांति चाहिए तो नाटो में शामिल होने का सपना छोड़े यूक्रेन, डोनबास से भी पीछे हट जाए, पुतिन रखा प्रस्ताव। कोई मूक तो कोई बधिर बनकर कर रहा नौकरी। राजस्थान में फर्जी दिव्यांग शिक्षक भर्ती का चौंकाने वाला खुलासा। चीन ने दिखाया ट्रंप को ठेंगा, भारत के लिए बड़ा ऑफर, बोला पूरी तरह आपके साथ। लिपुलेख पर भारत और नेपाल फिर आमने सामने, चीन के साथ करार बना नाराजगी की वजह। पंजाब में 11 लाख के राशन कार्ड कटेंगे, गाड़ी और टैक्स भरने वालों ने बनवाए, राज्य सरकार बोली गरीबों के कार्ड काटे जा रहे। हमले के बाद दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता को जेड सिक्योरिटी, 20+ हथियारबंद सीआरपीएफ जवान 24 घंटे तैनात रहेंगे। कल जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ था। संसद का मानसून सत्र खत्म, कुल 21 बैठकें, ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे चर्चा, बीच सत्र में धनखड़ का इस्तीफा, बिहार सर पर हंगामा। उपराष्ट्रपति चुनाव I.N.D.I.A उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने नामांकन किया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और सोनिया राहुल समेत कई नेता मौजूद रहे। 9 सितंबर को चुनाव। असम में 18+ उम्र वालों का नया आधार कार्ड नहीं बनेगा, सीएम हेमंत ने कहा। अवैध प्रवासियों को नागरिकता से रोकने के लिए फैसला लिया। सीएम योगी के जनता दरबार में जहर खाकर पहुंचा रिटायर्ड फौजी, बीजेपी विधायक पर लगाया सरकार गिराने का आरोप। जयशंकर ऑन यूएस टैरिफ्स, अमेरिकी टैरिफ पर जयशंकर ने सबको धो डाला, कहा चीन रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार, भारत नहीं। हमले के बाद सीएम रेखा गुप्ता का ऐलान, अब दिल्ली के हर विधानसभा में होगी जनसुनवाई। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच फोन पर बातचीत, यूक्रेन और पश्चिम एशिया में शांति पर हुई चर्चा। कोलकाता को मिलेगा विकास का तोहफा, पीएम मोदी 22 अगस्त को करेंगे 3 मेट्रो मार्गों का शुभारंभ।
गाजा पर कब्जे की योजना को देंगे मंजूरी, शुरू करेंगे बातचीत नेतन्याहू। हरियाणा पुलिस नाकाम रही तो हत्यारे को हम मार देंगे, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच को सरकार ने दी इजाजत, द्विपक्षीय सीरीज नहीं होंगी। सुबह देश राज्यों से बड़ी खबरें। 22 अगस्त शुक्रवार। एक पीएम मोदी आज कोलकाता दौरे पर 3 मेट्रो रूट और हावड़ा स्टेशन पर सबवे का उद्घाटन, 1200 रुपए करोड़ से बने कोना एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा और नियंत्रण देने वाला नया कानून समाज को ऑनलाइन पैसे वाले खेलों के खतरों से बचाएगा। संसद से पारित प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि यह कानून भारत को गेमिंग, नवाचार और क्रिएटिविटी का केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। 3 संसद का मानसून सत्र खत्म, कुल 21 बैठकें। ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे चर्चा, बीच सत्र में धनखड़ का इस्तीफा, बिहार सर पर हंगामा। 4 पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से की बात, यूक्रेन से लेकर पश्चिम एशिया तक कई मुद्दों पर चर्चा। 5 गिरफ्तारी पर पीएमसीएम की बर्खास्तगी का बिल जेपीसी को भेजा, शीतकालीन सत्र में सौंपी जाएगी रिपोर्ट। एक्सपर्ट बोले, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। 6 पैसे वाले खेलों के खतरों से बचाएगा नया बिल, ऑनलाइन गेमिंग विधेयक पर बोले पीएम मोदी। 7 जयशंकर बोले, भारत नहीं चीन रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार, फिर भारत पर हाई टैरिफ समझ से परे, पुतिन से मिले भारतीय विदेश मंत्री। 8 केंद्र बोला, राज्यों को बातचीत करके विवाद निपटाने चाहिए, दशकों से यही प्रथा, अदालत हर समस्या का समाधान नहीं, राज्यपाल बिल पेंडिंग केस। 9 रेल यात्रियों के एक्स्ट्रा लगेज पर नहीं लगेगा कोई फाइन, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया साफ। 10 टैरिफ पर ड्रैगन ने सुनाई चिप्स की कहानी, चीनी राजदूत बोले, भारत चीन एशिया में डबल इंजन वाले देश। 11 आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज, डॉग्स को शेल्टर होम भेजने के आदेश से विवाद शुरू हुआ, 7 दिन पहले फैसला सुरक्षित रखा था। 12 राहुल गांधी बोले, लोकसभा चुनाव के नतीजों में हेरफेर किया गया, मुंगेर में बारिश के बीच दिया भाषण, कहा, मोदी अडानी मिलकर आपकी आवाज दबा रहे हैं। 13 असम में 18+ उम्र वालों का नया आधार कार्ड नहीं बनेगा, सीएम हेमंत ने कहा, अवैध प्रवासियों को नागरिकता से रोकने के लिए फैसला लिया। 14 अब दिल्ली की हर विधानसभा में जनसुनवाई करेंगी सीएम रेखा गुप्ता, हमले के बाद बड़ा फैसला, भावुक पोस्ट। 15 महाराष्ट्र के पालघर जिले के तारापुर एमआईडीसी स्थित एक फार्मा कंपनी में नाइट्रोजन गैस का रिसाव होने से 4 कर्मचारियों की दम घुटने से मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 16 एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच होगा, सरकार ने इजाजत दी, कहा, मल्टीनेशन टूर्नामेंट खेलने से नहीं रोकेंगे, द्विपक्षीय सीरीज नहीं होंगी। #daily_current_affairs_at_a_glance। अंतर्राष्ट्रीय। भारत और सऊदी अरब ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए शिपिंग और लॉजिस्टिक्स पर संयुक्त कार्य समूह JWG गठित किया। राष्ट्रीय। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से परशुरामपुरी कर दिया गया है। खेल। हॉकी एशिया पुरुष कप 2025 का आयोजन पहली बार राजगीर, बिहार में 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक होगा। शुभंकर चांद हॉकी पकड़े हुए शेर।
उद्देश्य भारतीय हॉकी की समृद्ध परंपरा और राष्ट्रीय प्रतीकों को दर्शाना, खेल भावना और सम्मान को बढ़ावा देना। भाग लेने वाली 08 टीमें भारत, चीन, जापान, चीनी ताइपे, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, ओमान, बांग्लादेश। रेयांश गुप्ता ने चीन के जीनिंग में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। मोहम्मद सालाह, लिवरपूल ने रिकॉर्ड तीसरी बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। भाविना पटेल पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनी। तपस्या ने बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति। भारत ने 20 अगस्त 2025 को अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। स्थान चांदीपुर, ओडिशा। आयोजन इकाई स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड SFC। क्षमताएं रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक। वारहेड परमाणु सक्षम। मीर्व तकनीक, एक मिसाइल से कई लक्ष्य। जिगजैग इवेसिव मैन्यूवर क्षमता, मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देना। 3 चरणीय ठोस ईंधन प्रणाली, रिंग लेजर जायरो आधारित नेविगेशन, थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल। रणनीतिक महत्व। विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता की पुष्टि। नो फर्स्ट यूज नीति के अनुरूप। द्वितीय प्रहार क्षमता को मजबूत करना। महत्वपूर्ण दिन। 21 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित दिवस 8वां वर्ष। 21 अगस्त विश्व उद्यमी दिवस, एंटरप्रेन्योरशिप डे। 21 अगस्त विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। महत्वपूर्ण नियुक्तियां। अजय सिंह को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। छत्तीसगढ़ विशेषांक। प्रदूषण में छत्तीसगढ़ का स्थान। देश के 5 सबसे प्रदूषित राज्यों में छत्तीसगढ़ का 5वां स्थान। दिल्ली, यूपी, बिहार, हरियाणा के बाद छत्तीसगढ़। दुर्ग और रायपुर की स्थिति सबसे खराब। भारत प्रदूषण में दुनिया के 252 देशों में दूसरे नंबर पर। जनजातीय शोध को नई दिशा। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय और TRKC नई दिल्ली के बीच MOU। बस्तर और सरगुजा की जनजातियों पर अगले 3 वर्षों तक विशेष शोध। संस्कृति, परंपरा और समाज आर्थिक पहलुओं पर उच्च स्तरीय अध्ययन। प्रदेश का पहला फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। स्थान नया रायपुर। नेशनल फैशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट निफ्ट। स्थान नया रायपुर। 271 रुपए करोड़ की लागत से कैंपस का निर्माण। टेक्सटाइल सेक्टर में नए अवसर। नवीन उद्यानिकी महाविद्यालय। स्थान सोनारपाल, बस्तर। किसानों के उद्यानिकी फसलों की ओर बढ़ते रुझान को देखते हुए स्थापना। गुरु घासीदास सम्मान 2025। अनुसूचित जाति पीड़ितों को अत्याचार से राहत हेतु सम्मान। स्टॉप निशा सिन्हा को प्रदान। महतारी सदन योजना। महिला सशक्तिकरण हेतु राज्य सरकार ने 166 महतारी सदन के निर्माण की अनुमति दी। प्रत्येक सदन पर 30 लाख रुपए खर्च। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। सुप्रभात। जय हो। Please hit like, beating heart and share.